Hey दोस्तों, this is Prashant Kaushal and today I am going to discuss the next topic of the chapter 2 of business studies. The topic is sole proprietorship. My dear friends, in the previous video we have seen the introduction and the names of different private sector enterprises. We have seen that there are 5 private sector enterprises. The first one is sole proprietorship. Second is joint Hindu family business. Third is partnership. Fourth is cooperative societies. And fifth is company. Okay, these are the 5 private sector enterprises we have seen in the last video. Now we will discuss the total meaning, features, advantage and disadvantages of sole proprietorship. Okay, so let us start the topic. My dear friends, sole means one, proprietorship means honor. Okay, sole means one, proprietorship means honor. That means single honor, one honor. It is a kind of business which is handled by one person. Okay, that is called sole proprietorship. Okay, the definition will be a business which is owned, managed and controlled by a single individual is called sole proprietorship organization. Okay, ऐसा बिजनेस जो सिर्फ एक व्यक्ति के द्वारा ओन्ड हो, मैनेज हो, कंट्रोल हो, वो बिजनेस क्या कहलाएगा? सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस और सोल प्रोप्राइटरशिप ऑर्गेनाइजेशन. ओके, वी हैव सीन सो मेनी स्मॉल बिजनेसेस आउटसाइड in the real world, so many small shops and almost one person is running that shop. Okay, so all those small retail shops are coming under this form of business. Okay, so a business which is owned, managed and controlled by a single individual is called sole proprietorship organization. Okay, now we will see the features. Okay, through the features we will be able to understand it more clearly. Okay, the first feature, single ownership. The first feature of this type of business is single ownership. Okay, ऐसा business जिसमें कि एक ही व्यक्ति ownership होता है. Okay, in this kind of business only one person is the owner of the business. Okay, no other person can interfere. He is the whole soul in charge of that business. This is the first feature. Second feature, formation and closure. Okay, formation and closure is very easy. There is no legal formalities involved as it is opened by one person, so it's very easy to form. That is called easy to form, and it can be closed at any point in time. Okay, so it is easy to close. Okay, so it is easy to open and easy to close. There is no legal formalities required. If a person is dying or falling ill, okay, अगर वो मर गया है या फिर वो व्यक्ति बीमार हो गया है तो भी बिजनेस बंद कर सकते हैं विदाउट एनी लीगल परमिशन. सो हियर फॉर्मेशन एंड क्लोजर आर वेरी इजी इन दिस काइंड ऑफ बिजनेस. थर्ड फीचर, अनलिमिटेड लायबिलिटी. अनलिमिटेड लायबिलिटी. पहले हम लायबिलिटी का मीनिंग समझते हैं. लायबिलिटी मीन्स कि जो हमें ऐसा पैसा जो हमने बाहर से लिया है या फिर ऐसी उधारी जो हमें चुकानी है. ओके, सो जो भी अमाउंट हमें किसी को देना है वो हमारी लायबिलिटी कहलाती है. रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ऑल फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज विच वी हैव टू बियर और विच वी हैव टू पे टू द आउटसाइडर इज कॉल्ड लायबिलिटी. ओके, लायबिलिटी मीन्स वो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमें पेमेंट करनी बाकी है. ठीक है, जैसे कि हमने बाहर से लोन लिया या पैसा लिया किसी से तो उसको वापस देना पड़ेगा ना, ये लायबिलिटी होती है. ओके, जैसे मैंने रॉ मटेरियल लिया या फिर मैंने कुछ माल खरीदा बाहर से, क्रेडिट पे खरीदा, उधार पे खरीदा, तो वो वापस से मुझे देना पड़ेगा ना. वो पैसे मुझे देना पड़ेंगे जो जिस पैसों का सामान लिया है. सो वो जो पैसा मुझे बाहर वालों को देना बाकी है वो सब क्या कहलाती है? लायबिलिटी. ओके, अब अनलिमिटेड लायबिलिटी की बात करते हैं तो वो लायबिलिटी जो एक सोल प्रोप्राइटरशिप में आती हैं, इस बिजनेस में जो आती हैं वो लायबिलिटीज क्या होती हैं? अनलिमिटेड होती हैं. मतलब
कि अगर वो बिजनेस के प्रॉफिट में से वो पैसा नहीं चुका पा रहा है बिजनेसमैन, सो वो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी उसे बेचना पड़ेगी, अपना घर तक बेचना पड़ेगा, अपनी गाड़ी तक बेचना पड़ेगी, मगर उसे वो लायबिलिटी चुकानी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ बिजनेस के पैसे से जितने चुका दी उतना हो गया। अगर बिजनेस के पैसे या बिजनेस के प्रॉफिट से वो लायबिलिटी नहीं चुक पाई, वो लायबिलिटी नहीं पे कर पाया, तो वो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी सेल करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी मीन्स द डेब्ट विच he has to pay, the debt which he has to pay to the outsiders. For that he has to sell his personal property also. Okay, there is no chance that he can avoid all those liabilities. कोई चांस नहीं उसको अपने पैसे से कैसे भी करके उसको चुकाना पड़ेगी। ओके, सो इसको बोलते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। फोर्थ पॉइंट, इंडिविजुअल रिस्क बेयरिंग एंड प्रॉफिट रिस्क रेसिपिएंट। ओके, ये बंदा जो बिजनेस चला रहा है वो क्या होता है, इंडिविजुअल रिस्क बेयर है, वो अकेला ही सारे रिस्क लेता है ना। क्रेडिट लेने की, उधार लेने की रिस्क ले रहा है, ठीक है, सामान बेचने की रिस्क ले रहा है, शॉप में कुछ भी हो जाए, चोरी हो जाए, आग लग जाए, वो सारे रिस्क कौन ले रहा है, वो सारे रिस्क एक इंडिविजुअल ले रहा है, ओनली वन पर्सन। सो दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल रिस्क बेयरिंग। ठीक है, कस्टमर का माल, कस्टमर सामान ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, whatever risk involved in the business is borne by only one person. So obviously, and profit recipient. So obviously profit भी किसको मिलेगा, उसी एक बंदे को। सारे रिस्क भी वही ले रहा है और सारा प्रॉफिट भी वही एक ही आदमी ले रहा है। ओके, सो हियर ओनली वन पर्सन इज बेयरिंग द होल रिस्क ऑफ द बिजनेस। पूरी शॉप की सारी रिस्क, आग लगना, चोरी होना, सेल्स नहीं होना, उधार पे सामान लेना, सो मेनी रिस्क इन्वॉल्व, वो सब रिस्क वो एक इंडिविजुअल ले रहा है। तो प्रॉफिट भी कौन लेगा, द प्रॉफिट विल आल्सो बी बोर्न बाय, टेकन बाय हिम ओनली। ओके, सो दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल रिस्क बेयरिंग एंड प्रॉफिट रेसिपिएंट। फिफ्थ पॉइंट, वन मैन कंट्रोल। बिजनेस में सिर्फ किसकी चलेगी, किसका कंट्रोल है, सिर्फ उसी आदमी का जो ऑनर है। ओनली वन पर्सन इज कंट्रोलिंग द होल बिजनेस। क्या खरीदना है, कितना खरीदना है, किसको बेचना है, कब बेचना है, क्या सुविधाएं देना है, एवरीथिंग बिजनेस से रिलेटेड सारे डिसीजन एक ही आदमी लेगा। दैट इज कॉल्ड वन मैन कंट्रोल। ओके, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस। नो सेपरेट लीगल एंटिटी। ये बिजनेस उस ऑनर से अलग नहीं है, ये बिजनेस उस ऑनर का ही है और उसी के साथ चलता है। देयर इज नो सेपरेट लीगल एंटिटी। कोई लीगल फॉर्मेलिटी ही नहीं है, बिजनेस का कोई ब्रांड नेम ही नहीं बनाया, कोई लाइसेंसिंग पार्ट का कहीं यहाँ पे कोई है ही नहीं। कुछ सवाल है ना, कभी भी बनाओ बिजनेस, कभी भी ओपन करो और कभी भी क्लोज करो। सो देयर इज नो सेपरेट लीगल एंटिटी, नो ब्रांड इज क्रिएटेड, नो लाइसेंसिंग पार्ट इज डन। ओके, सो हियर द बिजनेसमैन हु इज रनिंग द बिजनेस, that business is attached completely with him, that's why it is unlimited liability. अगर वो बंदा उसका पूरा रजिस्ट्रेशन करा के, ब्रांड नेम रख के अगर वो बिजनेस स्टार्ट करेगा तो वो सेपरेट लीगल एंटिटी हो जाएगा। ओके, मगर सोल प्रोप्राइटरशिप में यहाँ पे सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, क्योंकि उसमें कोई भी उसने फॉर्मेलिटीज करी नहीं, कोई फॉर्म नहीं भरा, कोई लाइसेंस नहीं लिया है। ठीक है, उसने सिर्फ बिजनेस ओपन कर लिया और छोटे लेवल पे काम कर रहा है और वो उसका पैसा खुद ही के जेब से डाल रहा है और खुद ही के जेब में उसका प्रॉफिट आ रहा है। ओके, और वो प्रॉफिट खुद खर्चा भी कर रहा है पर्सनल एक्सपेंसेस पे। तो ये सब जो पर्सनल लेवल पे काम हो रहा है वो सब सेपरेट लीगल एंटिटी का पार्ट नहीं है। ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नो सेपरेट लीगल एंटिटी। ये बिजनेस एक अलग से आइडेंटिटी नहीं बनाता है, उसी का बिजनेस है, उसी व्यक्ति का, उसी से जुड़ा हुआ है। कोई भी लीगल ऑथराइजेशन नहीं है इस बिजनेस का, लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है। सेवंथ पॉइंट, लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। माय डियर फ्रेंड्स, ये बिजनेस बहुत ज्यादा दिन तक कंटिन्यू नहीं करेगा। दैट इज कॉल्ड लेक। लेक मीन्स कमी, बिजनेस कंटिन्यूशन की बहुत कमी। क्यों? क्योंकि उस एक बंदे के ऊपर डिपेंड है बिजनेस। वो बंदा बीमार हो सकता है, वो बंदे की डेथ हो सकती है, या कुछ पर्सनल इश्यू भी हो सकता है ना। एक्सीडेंट हो गया, मान लो कुछ डैमेज हो गया बॉडी पार्ट, वो काम नहीं कर पाएगा। ओके, सो देयर आर सो मेनी इश्यूज हियर विद द सिंगल पर्सन because of one person is running business, so lack of continuity is affecting वो businessman। जब भी बीमार पड़ जाएगा या कुछ प्रॉब्लम हो गई उसके साथ या फिर डेथ हो गई उसकी, तो बिजनेस बंद हो जाएगा, that business will be closed। okay, so continuity
नहीं रहेगी बिजनेस की. दैट इज अ फीचर ऑफ दिस form of business. And the last one is small size. Generally sole proprietorship business छोटे साइज के ही होते हैं. आपने देखा होगा एक छोटे से रूम में ही या फिर एक छोटी सी दुकान खोल के या फिर रेंट पे लेके बिजनेस स्टार्ट करते हैं. आप देखोगे n number of shops are there in the market. They are the example of sole proprietorship. आपने कचौरी समोसे वाला, पानी पूरी वाला, आपने चाय की दुकान वाला, पोहे वाला, है ना, छोटे छोटे से कपड़ों की दुकान है, आपने बहुत सारी शॉप्स देखी. ये सब जनरली टाइम में आती है सोल प्रोप्राइटरशिप. ओके, इसके लिए उन्हें कोई बड़ा लाइसेंसिंग, कोई लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं लेनी पड़ती. प्रॉफिट उनके जेब में जाता है और उसी प्रॉफिट से वो पर्सनल भी खर्चा करते हैं. तो ये सारे फीचर्स लिंक हो जाएंगे. ओके माय डियर फ्रेंड्स, सो ट्राई टू लिंक ऑल दीज फीचर्स with those businesses which are running outside. You will find all these things in those business. Okay, so it will be easy you to understand and recall. Okay, so my dear friends, this is all about sole proprietorship. Okay, we have discussed the feature in this video. In the next video we will discuss the merits and demerits of the sole proprietorship only. Okay, kindly like, share and subscribe my channel. Thank you. See you.